as students, we would want to be looked as, somebody who says, oh, she is so in, fashionable and stylish. ऐसा होता है ना? We at least try to fit in into a certain mold that is set by the society. But now, the mindfulness or awareness, these things have become very, very important. So here, when we are taking our classes, if we also spread this knowledge to our students, it will be very helpful to them. And the best part is we also grow. Because we have to practice, we have to learn to do this, right? So, okay. And now ma'am will take over the session. Thank you. I think, can you please use the mic because we are video recording as well. So, we all know being a teacher, teaching is a noble profession, right? So हम सबको बोला जाता है values, 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 values. But we should know what is the meaning of this word values. So what do you think? What is the meaning? And firstly, the teacher should know what is the meaning of the word values. So क्या लगता है? What is the meaning of the word values? Okay, let me start. There is a word, human being. Hello? Human being. See, human means humus. Humus or soil. See, human being, we all know, we all use this word being human, right? What is the actual meaning of this human being word, right? Human means humus, or the scientific meaning of the word human is humus, soil, मिट्टी. हम बोलते हैं ना, ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी का है, मिट्टी का है. But what is the meaning of the word being? Being means life force. Being means, in science, it is called as energy, right? So human being. So whenever we look ourselves into the mirror, हम अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ. हम ऐसे बोलते हैं. But the actual word is human being. यानी कि हम इस बॉडी को बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ या मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, ठीक है? But actual, अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ, means if I'm saying this body कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, इसका मतलब मैं सिर्फ बॉडी हूँ. So अगर मैं सिर्फ बॉडी हूँ, तो डेड बॉडी और एक जीवित, उसमें क्या डिफरेंस है? What is the difference between a dead body and a body who is live? So what is the difference? How can you differentiate? See, so this is the word which is this is the word जो हम भूल चुके हैं. So human means this body, जिसको हम बोलते हैं, this body is made up of 5 elements. What is the proof that this body is made up of 5 elements? What are those 5 elements? Water, air, space, fire and earth, right? So what is the proof that this body is made up of 5 elements? Because whenever we मतलब जब भी if we say हम dehydrated feel करते हैं, right? So dehydration के time we need water, प्यास लगती है. Nobody tells us कि आपको पानी पीना है. It is but obvious that we have to take water, we have to consume water, right? So इसका क्या proof है कि मेरी बॉडी पानी से बनी है? पानी से बनी है तभी मुझे पानी चाहिए. मेरी बॉडी अर्थ से बनी है means मुझे न्यूट्रिशंस चाहिए, right? खाना चाहिए बॉडी को चलाने के लिए. फिर मेरी बॉडी को फायर मीन्स सनलाइट. देयर आर सम कंट्रीज जहाँ पे सूरज नहीं है, वहाँ पे बहुत बीमारियाँ लगती हैं, ठीक है? फिर स्पेस, हम 24 घंटे नहीं खा सकते, वी नीड अ स्पेस, राइट? स्पेस हर चीज में चाहिए. सो माई बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. दिस इज द प्रूफ कि उसको क्रेव करते हैं हम, उसकी कमी में हम उसको क्रेव करते हैं. हमें
एक सिग्नल मिलता है ब्रेन को कि हमें पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सनलाइट चाहिए. सो यानी कि ये जो ह्यूमस वर्ड है, this word is made up of 5 elements, right? Now what is the meaning of the word being? Being means that life force, प्राण जिसको बोलते हैं. किसी की डेथ होती है, हम क्या बोलते हैं, उसके प्राण निकल गए. सो अगर मैं बॉडी हूँ तो वो क्या निकल गया, वो एनर्जी निकल गई. बीइंग मीन्स जिसको साइंस में पावर बोलते हैं, हिंदी में शक्ति बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं. तो बेसिकली प्राण बोलो, एनर्जी बोलो, सोल बोलो, आत्मा बोलो, ठीक है. लेकिन हम सब इस आत्मा परमात्मा वाली चीजों से बहुत डरते हैं. सो लेट अस नॉट यूज दोज वर्ड्स, सोल, स्पिरिट एंड आत्मा, राइट. बट चीज एक ही है. सो अगर साइंटिफिकली अगर हम देखें, बीइंग मीन्स एनर्जी. नाउ वैल्यूज को जानने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनर्जी. What is the meaning of the word energy? So अगर ह्यूमन का मतलब मुझे पता है कि उसके रिक्वायरमेंट के 5 एलिमेंट्स हैं. जब ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस नहीं है, हम बीमार होते हैं, राइट. अब एनर्जी भी तो किसी चीज से बनी होगी ना. अगर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स तो एनर्जी भी तो किसी चीज से बनी होगी, राइट. सो वो एनर्जी किस चीज से बनी है? क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनर्जी, what are the innate qualities of the word being or the soul. एनर्जी क्या है? सोल है, राइट. लेकिन बच्चों को हम ये टर्म्स यूज नहीं कर सकते हैं. हमें साइंटिफिकली चलना है तो हम एनर्जी बोलते हैं, राइट. जिसको हिंदी में प्राण बोलते हैं, सिंपल. कि वो अब नहीं रहे, बोलते हैं ना, वो अब नहीं रहे. तो कौन नहीं रहा? कुछ तो है जो निकल गया. एनर्जी के लिए वी ऑल हैव स्टडीड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, राइट. कभी खत्म नहीं होती है. सो वैल्यूज जो हैं, वैल्यूज व्हाट डू यू थिंक, इज इट रिलेटेड, दोस वैल्यूज आर रिलेटेड टू योर बॉडी और द वर्ड एनर्जी? ऑब्वियसली माइंड, एनर्जी, ठीक है. तो वैल्यूज को जानने से पहले मुझे एनर्जी का तो पता हो. पहले ये तो एक कंफर्म हो कि मैं आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम एन एनर्जी, राइट. सो एनर्जी यहाँ तक मुझे क्लियर हुआ that I am not this body, I carry this body, this is my body, I am not this body, I am an energy. So like body is made up of 5 elements, proof है 5 एलिमेंट से बनी है, प्रूफ है, सबने प्रूफ देखा, ठीक है. उसकी क्रेविंग होती है, जैसे ही वो इम्बैलेंस होती है, we all crave for those 5 elements. Similarly, this being word or the energy word, it is made up of 7 innate qualities. मतलब जो मैं हूँ, मेरी बॉडी नहीं, जो मैं खुद हूँ, मैं उन 7 क्वालिटीज से बनी हूँ. और वो 7 क्वालिटीज जब मैं एक्शन में लेके आती हूँ, उसको वैल्यूज बोला जाता है. नाउ व्हाट आर दोस 7 क्वालिटीज? फर्स्ट इज नॉलेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान. आपको अभी नॉलेज हुई दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम एनर्जी. मुझे नॉलेज हुई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, ठीक है, मुझे अच्छा लगा. तो मतलब जो चीज अच्छी लगती है, अगर मेरी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, मेरे को सिग्नल मिलता है, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, राइट. मुझे सीखना नहीं पड़ रहा है, मेरी बॉडी को खुद से सिग्नल मिल रहा है. आई मीन योर ब्रेन, जो योर बॉडी इज गिविंग द सिग्नल टू द ब्रेन कि आपको ये चाहिए, वो चाहिए, राइट. उसी तरह मैं किससे बनी हूँ? मैं वो 7 क्वालिटीज से बनी हूँ, 7 इनेट क्वालिटीज से बनी हूँ. तो वो 7 क्वालिटीज का जब बैलेंस होता है, लाइक जब 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होता है, तो पता लगता है 7 क्वालिटीज जब बैलेंस्ड पोजीशन में है, तो हमें हमारी लाइफ जो है वो स्ट्रेसफुल नहीं है. पीस इज नेचुरल या स्ट्रेस इज नेचुरल? व्हाट डू यू से? पीस इज नेचुरल. पर आजकल लोग क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे को भी बोलते हैं बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, है ना. तो स्ट्रेस कैसे नेचुरल हो सकता है? जो अगर मैं ठीक हूँ, हेल्दी है बॉडी, मतलब 5 एलिमेंट्स ठीक है, तो क्या हम उसको सेलिब्रेट करते हैं? नहीं ना, वो नॉर्मल लाइफ है.
लेकिन जब हम बीमार होते हैं, हिलते हैं, तब हम डॉक्टर को सीख करते हैं, ठीक है। उसी तरह 7 क्वालिटीज जब हैं तो उसको बाहर से नहीं लेके आना है, वो इनेट क्वालिटीज है जिसको हम बोलते हैं संस्कार। हिंदी में वी यूज द वर्ड संस्कार। सो व्हाट आर दो 7 क्वालिटीज? नॉलेज मिली कि मैं ये हूँ, ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हुआ। नॉलेज मिली दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। जब ये नॉलेज मिली दैट एवरीबडी इज एनर्जी, एवरीबडी इज सोल, एवरीबडी इज एन एक्टर ऑन दिस वर्ल्ड ड्रामा, एवरीबडी इज जस्ट प्लेइंग दी डिफरेंट रोल्स, राइट। तो जब ये नॉलेज मिली तो प्योरिटी आई। दिस इज माय सेकंड वैल्यू, प्योरिटी, पवित्रता। हर एक को गंदी चीज अच्छी लगती है, किसी को गंदा बेड, गंदे कपड़े, प्योरिटी। एक छोटा बच्चा, छोटा, बिल्कुल छोटा, किसी और के हाथ में भी होता है, हमें तब भी वो अट्रैक्ट करता है। क्यों? प्योर है, राइट। जो जितना प्योर है, साफ जगह, साफ खाना, साफ हर चीज साफ। दिस इज द प्रूफ कि हम प्योर हैं। आई एम अ प्योर बीइंग। प्योरिटी हर एक 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर एक सोल को प्योरिटी अट्रैक्ट करती है, हर एक को। जो अपना रूम साफ भी नहीं करता ना, उसका किसी दिन रूम साफ करना और उसको बोलना है इसको वापस गंदा कर दें, वो कभी भी नहीं बोलेगा गंदा कर दो, राइट। हर एक को प्योरिटी अट्रैक्ट करती है। अब प्योरिटी है अंदर तो लाइफ में लव आ जाएगा, प्यार। प्यार हर एक, किसी से भी पूछो, हर कोई बोलता है 2 मिनट प्यार से बात करो, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, ठीक है। मैं कटोरा लेके आपसे प्यार मांग रही हूँ, आप मुझसे मांग रहे हो, देने का किसी के पास नहीं है, ठीक है। मैं मुझसे मांग रही हूँ, वो मुझसे मांग रहा है, लेकिन जिसके पास स्टॉक ही नहीं है वो कैसे दूसरे को देगा, राइट। तो लाइफ में प्योरिटी है, लव है, तो शांति अपने आप आ जाएगी। आज हर कोई बोलता है 2 मिनट की शांति, प्यार से बात करो, 2 मिनट की शांति चाहिए, ठीक है। सो 4th इनेट क्वालिटी और इनेट संस्कार ऑफ द सोल ऑफ और द बीइंग इज पीस। देन 5th, लाइफ में अगर शांति है ना तो सुख तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही। सुख और हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज 4 क्वालिटीज। 5th क्वालिटी इज हैप्पीनेस, जॉय जिसको बोलते हैं, जॉय, सुख, सो हैप्पीनेस। देन 6th इज ब्लिस। ब्लिस को हिंदी में बोलते हैं आनंद, कंटेंटमेंट। लाइफ में मुझे नॉलेज है, लाइफ बहुत सिंपल है, प्योर है, मुझे फेक नहीं बनना पड़ रहा। आई एम सो ट्रांसपेरेंट। इफ आई एम सो ट्रांसपेरेंट विद एनीवन टू whom आई एम मीटिंग, ठीक है, मेरी लाइफ में प्यार है, मेरे पास इतना स्टॉक है, मुझे मांगने नहीं पड़ रहा, मैं ही दूसरों को रेडिएट कर रही हूँ। मुझे मांगना कब पड़ता है? जब मेरे पास स्टॉक नहीं है, ठीक है। और रेडिएट कब करूंगी? जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। सो प्यार है तो लाइफ में पीस ऑटोमेटिकली आएगा। देन हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ पीस, राइट। हैप्पीनेस रेपिडेटली जब हैप्पी है आप लाइफ में, आपकी दिन बर दिन, डे बाय डे लाइफ बहुत हैप्पी है, देन ब्लिस जो है वो नेचुरल है। मेरी लाइफ, इफ आई से माई लाइफ इज सो कंटेंटेड, इट मीन्स लाइफ में ये सब कुछ है। I am so contented with myself that I don't need anything from outside. So it means my life is full of contentment, right? Bliss है तो शक्ति है, power. Power not in the physical term, power to face anything, power to face any situation, power to tolerate something, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, to digest. आज हमें एक कोई बात सुनाता है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं करते, हम दूसरे को बता देते हैं, ठीक है। सहन नहीं कर पाते, हम रोने लग जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं। 2 ही चीजें हैं ना, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं, बिकॉज शक्ति की कमी है। शक्ति, फिजिकल शक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो लाइफ में जब प्यार है, शांति है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है, इफ माई if my life is full of contentment, that I never seek happiness or
these all 4 qualities outside, then automatically I will become a powerful being. एक मतलब ये जो हमारी ना 8 powers, हम अष्टमी मनाते हैं. अष्टमी is a symbolic फेस्टिवल. सो वो अष्ट शक्तियां जो दिखाते हैं वो 8 पावर्स होती हैं. सहन शक्ति, ऐसे बहुत कुछ है, सहन करने की मतलब पावर टू टॉलरेंस है. इस तरह से हमारी 8 पावर्स होती हैं. तो वो 8 पावर्स हमारे अंदर अपने आप आ जाती हैं. ठीक है, क्लियर है? और जब हम अपनी लाइफ में इन 7 क्वालिटीज को एक्शन में लाते हैं तो ये जो है these 7 qualities are the primary qualities. Like we have 3 primary colors. कौन से होते हैं? रेड, ब्लू एंड येलो, है ना? उन 3 कलर से हम 150 कलर्स बना सकते हैं. उसी तरह अगर आपके अंदर ये 7 क्वालिटीज हैं, हम जो है बोलते हैं ना 36 गुण, ठीक है? तो वो देवी देवताओं की महिमा कहते हैं ना, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, बोलते हैं ना, ऐसे सुना है हमने. सो वो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आएंगी. सो 7 अगर ये प्राइमरी कलर्स की तरह प्राइमरी क्वालिटीज if you apply these all 7 qualities in your actions, then automatically you will get all those 36 qualities जिसमें बहुत कुछ है. सच बोलना, झूठ मतलब जेलस ना करना, राइट, खुश रहना, ये सारे उन 36 गुणों में आ जाता है. तो उन 36 गुणों को लाने के लिए मतलब those 36 qualities are the secondary qualities. तो इन 7 को हमें लेके जो आना है वो पहले एक एक को फील करते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट आई हैव टू सीक ऑल दी 7 क्वालिटीज फ्रॉम आउटसाइड. कहीं बाहर से नहीं लाने हैं. जैसे 5 एलिमेंट्स कहीं बाहर से नहीं लाने हैं. 7 क्वालिटीज हर सोल में है, हर बीइंग में है. कोई कितना भी झूठ बोले, स्टिल दैट सोल हैज ऑल दीज 7 क्वालिटीज. इट्स जस्ट हम भूल चुके हैं. और जैसे अगर मैं आपको अभी बोलूं, okay, let us practice 5 minutes relaxation activity, and then I will guide you on any of the 7 qualities. ठीक है, और फिर आप उसको फील करना. So अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है. अगर मैं अभी आपको बोलूँ जस्ट विजुअलाइज द गेट ऑफ योर हाउस, राइट, अभी वहाँ चले जाओ, अपने घर का दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोल के आप एंटर करो. वहाँ जहाँ पे भी फ्रिज पड़ा है, फ्रिज के पास जाओ, फ्रिज ओपन द डोर, ठीक है, उसमें एक एप्पल पड़ा है, एप्पल को निकालो और जहाँ पे भी पानी है एप्पल को वॉश करो. नाइफ लो, एप्पल को कट करो और उसको टेस्ट करो. सो जैसे जैसे मैंने आपको थॉट्स दी, ठीक है, थॉट्स गिव राइज टू फीलिंग्स. थॉट्स से फीलिंग्स हैं. थॉट्स से आपने फील किया. मैं अगर आपको बोलूँ कोई ऐसा लाइफ का मोमेंट याद करो जिसमें आपकी बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी किसी से, कैसा फील होगा? बहुत गंदा लगेगा. सो थॉट्स से फीलिंग्स हैं. फीलिंग्स से मैं एट प्रेजेंट अच्छा फील कर रही हूँ या बुरा फील कर रही हूँ, हर चीज़ का फाउंडेशन थॉट्स है. हर चीज़ का फाउंडेशन थॉट्स है. ठीक है, तो अगर मुझे पीसफुल फील करना है तो मुझे पीस से रिलेटेड थॉट्स देनी है, सिंपल. एंड मेडिटेशन, जिससे हम बहुत डरते हैं, कोई हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है. आपको सिंपली जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, ओपन द डोर ऑफ योर फ्रिज, ठीक है, गेट एन एप्पल, कट इट एंड हैव इट, राइट, वो है मेडिटेशन. अपने आप को अलग अलग थॉट्स देना और उसको फील करना इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन, नथिंग एल्स. ठीक है, तो अभी हम एक 2-3 मिनट की करते हैं, एक छोटी सी प्रैक्टिस. सो यू कैन क्लोज योर आइज, इट्स योर चॉइस. Okay, you can visualize. Now, in this session, as I have realized that I am not this body belongs to me.
then who am I? I have learned that I am not this body. I am a being, like Shakti, like energy, right? Energy. So just try to visualize a point of light, a tiny little star, just at the center of your forehead, between the eyebrows. आईब्रोज के ठीक बीच एक टाइनी लिटिल स्टार को देखें. दिस इज द सिंबल ऑफ एनर्जी. दैट इज व्हाई वी पुट तिलक ऑन आवर फोरहेड. सो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्टार who is shining at the center of my forehead between the eyebrows. I, the energy, I am full of peace. I don't need to seek the peace from outside. I am already a peaceful being. I am full of 100% peace. And as I am full of peace, I am radiating peaceful energy outside, all around me. I have created an aura, and now this aura is full of peaceful vibrations. Anybody who comes in contact with this aura, he or she can sense those peaceful vibrations. I radiate or spread peaceful energy to this universe. The souls, the human beings who are in depression, who are stressful, they are getting those peaceful vibrations. I am radiating peaceful vibrations into this universe, and people who are in depression, they are receiving those peaceful vibrations through me. So I am doing a very good karma. I am a peaceful being. I don't have to seek peace from outside. I'm already a peaceful soul, a peaceful being. Try to feel the energy of peace all around you. You have created an aura which is full of peaceful vibrations. Thank you. You can open your eyes. So, if I am peaceful now, I don't have to give a lecture on peace. I will automatically radiate peaceful energy into my classroom. The students will automatically get those peaceful vibrations from me, right? So that's okay. Thank you so much. Just take a minute to thank. So thank you very much, both our resource persons, for a very unique and creative session. And I personally feel that, as teachers, our mental health is the most neglected area. And teaching is not a desk job. तो हमारे अंदर कई तरह के तूफान होते हैं due to our personal lives, our professional lives, but we have to engage with students. So it's very challenging. कि वहाँ पे our own storms do not reflect in the classrooms. So it's very important, and even if we have passion at an individual level, I feel that there need to be support mechanisms that have to be established. वरना passion तो उड़ जाता है फिर धीरे धीरे if you don't have that kind of support structure. So we need to, as teachers, also imagine better mechanisms at the institutional levels जो हमारे passion को जिंदा रखे. And at last, on behalf of the Teaching and Learning Center, I want to thank our esteemed faculty members. In spite of a very hectic schedule, you managed to come here. So thank you very much, and we look forward to see you in the next weeks.